Hello students, how are you all? I hope you all are fine. So today we are going to start revision of our class 9 first chapter, that is matter in our surrounding. This is the topic that we are going to cover today in this lecture. So we begin this topic with the definition of matter. What do you mean by matter? So as you have studied in class 9, matter is anything which occupy space and has mass is called matter. So all the things in our surrounding, they are called matter. Now matter is classified. Classification of matter is carried out on two bases, and the bases are, first basis is physical classification, means on the basis of physical properties of the matter, and the second criteria to classify is chemical classification, means here we will be dealing with the composition of matter, of what it is made up of. So we begin this classification with the physical classification. फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर का किया जाता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट. So in short it is called BEC, Bose-Einstein condensate. These are the 5 states of matter. So let us begin with the solid. First of all we will do the physical classification. So we begin with solid. What is solid? So as you all know, any substance which has a fixed shape, size, volume is said to be a solid. It has a well defined boundary. After that, what is a liquid? So as you all know that liquid is that state of matter which do not have any fixed shape or any fixed size, but it has a definite volume in it. After that we come to gaseous state. So gaseous state, it also do not have any fixed shape, size, and neither it has a fixed volume. It takes the shape, size and volume of the container in which it is enclosed. ये उस कंटेनर की वॉल्यूम अटेन कर लेती है जिस कंटेनर में आपने गैस को एनक्लोज किया हुआ है. चलिए अब हम देखते हैं कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनका पैकिंग जो है वो किस तरीके से होती है. पैकिंग of particles in solids. So as you all know that solids, the particles are closely packed. There is a very little space between the particle in the case of solid, and the particles are said to be closely packed. Liquids के केस में क्या होता है? Particles are loosely packed. यहाँ पर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है. सॉलिड्स के अंदर जो है वो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है. गैस की बात करते हैं तो गैस के अंदर पार्टिकल्स जो है वो बहुत दूर दूर होते हैं. यहाँ पर पैकिंग जो है वो होती ही नहीं. सो वी से दैट द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट. अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो हम देखते हैं, व्हाट इज द टाइप ऑफ मोशन व्हिच इज एग्जिबिटेड बाय the particles in the case of solid. Motion of particles. So as we can see that solids, they have a rigid structure, they have a fixed shape, they have a fixed size and a fixed volume. So we can say that these particles, they are restricted, they are not able to move. So we will find that only vibrational motion is present. Vibrational motion is present in the particles of solid. सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं ये सिर्फ अपनी मीन पोजीशन पे थोड़ा सा वाइब्रेट कर सकते हैं. इनके अंदर ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन नहीं होता. ट्रांसलेशनल मोशन किसको बोलते हैं? व्हेन वी आर मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन,
When we are moving in a particular direction, this is called translational motion. And when we are moving in any direction as well as we are rotating, then this is called rotational motion. So when you are rotating on any axis, it is rotational motion, and when we are moving in any direction along with rotation, for example wheel, गाड़ियों का जो पहिया होता है वो ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों शो करता है। हमारा जो फैन है, सीलिंग फैन, वो सिर्फ रोटेशनल मोशन शो करता है क्योंकि वो मूव नहीं कर सकता अपनी पोजीशन से। तो सॉलिड के अंदर क्या होता है, पार्टिकल अपनी पोजीशन से मूव नहीं कर सकते, तो वहां पर ट्रांसलेशनल मोशन भी नहीं है प्लस रोटेशन भी नहीं है, सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होता है। पार्टिकल्स जो है वो वाइब्रेट कर सकते हैं, वो भी ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो वाइब्रेशनल मोशन होता है यहाँ पर, और वो भी कम होता है। लिक्विड्स के केस में क्या होता है, आपने देखा होगा, अगर किसी सरफेस पे लिक्विड जो है उसको गिरा दिया जाए तो वो लिक्विड एक डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देता है। एक डायरेक्शन के अंदर जब वो फ्लो करता है तो उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर उस टाइम पर क्या हो रहे होते हैं, रोल हो रहे होते हैं। दिस पार्टिकल इज रोलिंग ओवर अदर पार्टिकल एंड दे आर मूविंग इन एनी डायरेक्शन। तो इस तरीके से पार्टिकल्स रोल भी होते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर और वो एक डायरेक्शन में मूव भी करते रहते हैं। तो हम यहां पर बोलेंगे, यहां पर ट्रांसलेशनल मोशन भी होता है, रोटेशनल मोशन भी होता है एंड वाइब्रेशनल मोशन भी होता है पार्टिकल्स का। या फिर ये कह सकते हैं हम कि लिक्विड के पार्टिकल्स में हमें ये तीनों मोशन देखने को मिलेंगे। यहां था सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन, यहां पर ट्रांसलेशन भी आएगा, रोटेशन भी आएगा और वाइब्रेशन भी आएगा लिक्विड के केस में। गैस के केस में क्या होता है बच्चों, गैस के केस में भी ये तीनों मोशंस एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि गैस जो है वो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है, मूव कर सकती है। ट्रांसलेशन भी होगा इस वजह से, वहां पर रोटेशन भी होगा और वाइब्रेशन तो सभी में होता है। सो यू कैन मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट। आप ये पॉइंट नोट कर सकते हैं कि इन द केस ऑफ solid, liquid and gas, vibrational motion is present in all the three states. Vibrational motion is found in all the three states, that is solid plus liquid plus gas. सेकेंड पॉइंट, जो मोशन लिक्विड के पार्टिकल शो करते हैं वही मोशंस गैस के पार्टिकल भी शो करते हैं। ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल, that is found in both liquid and gaseous state. तो ये हो गया टाइप ऑफ मोशन बिटवीन द पार्टिकल्स। वाइब्रेशनल मोशन में मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है, रोटेशन में पार्टिकल्स रोटेट करते हैं और ट्रांसलेशन के अंदर पार्टिकल्स जो है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस थ्री टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन। अब देखो बच्चों, सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। अब इस प्रोसेस को जो है वो हम थोड़ा सा यहां पर पढ़ते हैं। आपने देखा होगा सॉलिड से लिक्विड को हम बोलते हैं मेल्टिंग, और जब हमें मेल्टिंग करनी होती है देन वी नीड टू हीट द सब्सटेंस। हमें इस सब्सटेंस को गर्म करना पड़ेगा। इट मींस वी हैव टू सप्लाई एनर्जी। इस प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। तो जब एनर्जी हम सप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं जिनके अंदर वाइब्रेशनल मोशन हो रहा था बस, ये वाइब्रेशनल मोशन बढ़ जाता है। तो वाइब्रेशनल मोशन क्यों बढ़ा, ड्यू टू द इंक्रीज इन एनर्जी। जो एनर्जी आप दे रहे हो इसको हीट की फॉर्म में, वो एनर्जी इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देती है। एनर्जी सप्लाइड बाय अस इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ
द पार्टिकल्स। और तुमने पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो मोशन बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। तो यहां पर कौन सा मोशन है सॉलिड में? वाइब्रेशनल मोशन इंक्रीज। इसका वाइब्रेशनल मोशन बढ़ जाएगा। वाइब्रेशनल मोशन बढ़ेगा तो पहले जो पार्टिकल कम वाइब्रेट कर रहे थे, अब वही पार्टिकल्स ज्यादा वाइब्रेट करेंगे। ज्यादा वाइब्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगी? इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जो है वो बढ़ जाएगा, और स्पेस बढ़ जाएगा तो ये किस में चले जाएंगे? इस स्टेट में चले जाएंगे। तो जब आप किसी भी सब्सटेंस को हीट कर रहे होते हो, यू आर इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब है पार्टिकल्स का मोशन इंक्रीज होना। और यहां पर कौन सा मोशन था? वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन बढ़ेगा तो पार्टिकल्स जो है वो ज्यादा स्पेस लेंगे वाइब्रेट करने के लिए, और ज्यादा स्पेस जब आ जाएगा पार्टिकल्स के बीच में तो उनकी स्टेट चेंज हो जाएगी फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। सो एक्चुअली व्हेन वी आर सप्लाइंग दिस एनर्जी, वी आर इंक्रीजिंग द मोशन ऑफ पार्टिकल्स। अब देखो, जब हम लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्जन देखते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, लिक्विड से गैसेस में बोलते हैं वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन कब होता है? जब किसी लिक्विड को हीट किया जाता है, और हीट करने का मतलब यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं? वी आर प्रोवाइडिंग एनर्जी। तो सेम वही कंसेप्ट लगेगा। व्हेन वी हीट द लिक्विड, व्हेन वी इंक्रीज द एनर्जी, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इसके अंदर कौन कौन सा मोशन था? ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन प्लस वाइब्रेशन। तो तीनों मोशन जो है वो बढ़ जाएंगे इसके, और इस वजह से ये पार्टिकल्स जो अभी लूजली बाउंड थे, वाइब्रेशन बढ़ने की वजह से इनके बीच में स्पेस और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो ट्रांसलेशन और रोटेशन जो है वो तो रहेगा ही, वाइब्रेशन की वजह से ये पार्टिकल्स और भी ज्यादा दूर चले जाएंगे, और इस वजह से ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जब भी आप एनर्जी सप्लाई करते हो, सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड एंड लिक्विड चेंजेस इनटू गैस ड्यू टू द इंक्रीज इन दिस मोशन ऑफ पार्टिकल्स। अब देखो, अगर हम उल्टा प्रोसेस करते हैं, गैस से अगर हमें लिक्विड बनाना है तो हम क्या करते हैं? कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कूलिंग। तो कूलिंग का मतलब क्या होता है? कूलिंग का मतलब होता है लोअर एनर्जी। मतलब हम ठंडा करते हैं किसी सब्सटेंस को, हम उसकी एनर्जी घटा रहे होते हैं, उसकी एक्स्ट्रा एनर्जी को हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो कूलिंग रिक्वायर्स एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। तो कूलिंग करोगे तो पार्टिकल्स की एनर्जी को आप एब्जॉर्ब कर लोगे, पार्टिकल्स की एनर्जी इस वजह से कम हो जाएगी। ड्यू टू दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज, और काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो मोशन डिक्रीज हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, देन मोशन आल्सो डिक्रीजेस, मोशन ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज हो जाएगा, और मोशन ऑफ पार्टिकल कम हो जाएगा तो उनके बीच में स्पेस जो है वो कम हो जाएगा, पार्टिकल्स पास आ जाएंगे। तो एज अ रिजल्ट स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स डिक्रीजेस। तो इस वजह से गैस जो है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है जब हम इसको ठंडा करते हैं, बिकॉज व्हेन वी आर कूलिंग एक्चुअली वी आर एब्जॉर्बिंग द एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। तो ध्यान रखना बच्चों इस चीज को, जब भी हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो हम उसकी एनर्जी बढ़ा रहे होते हैं, उसके पार्टिकल्स का मोशन बढ़ा रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये स्टेट चेंजेस होते हैं। और जब हम किसी चीज को ठंडा करते हैं तो इसका मतलब हम उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसकी वजह से पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच में स्पेस कम हो जाएगा, वो पार्टिकल्स पास आएंगे और उनकी स्टेट चेंज हो जाएगी इस तरीके से। सेम यही एक्सप्लेनेशन आएगा यहाँ पर लिक्विड से जब आप सॉलिड बनाते हो, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग में भी हमें क्या करना पड़ता है? कूलिंग करनी पड़ती है। तो कूलिंग करते टाइम हम उसका मोशन जो है वो डिक्रीज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से फिजिकल स्टेट में ये चेंजेस आते हैं। अब देखो, what is the temperature that is required to convert a solid into liquid? कितना कम से कम टेम्परेचर हमें रिक्वायर्ड होगा किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट
के लिए, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उस टेम्परेचर को जिसमें हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं? इट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो सॉलिड से लिक्विड का प्रोसेस जो है उसको अगर मेल्टिंग बोला तो द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट चेंजिंग टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो ये टेम्परेचर का भी ध्यान रखना, यहां पर मैं लिख देता हूं मेल्टिंग पॉइंट। आपसे क्वेश्चन पूछेगा डिफाइन मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर at which solid starts changing into liquid is called melting point। तो एग्जाम्पल मेल्टिंग पॉइंट, किसी भी सब्सटेंस का अगर आप डाटा देखेंगे तो गिवन होगा आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कुछ और होता है, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कुछ और होता है, एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट कुछ और होता है। तो जो भी एग्जांपल रहेगा तुम्हारा सबका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिफरेंट आता है। मेल्टिंग पॉइंट जो है इसकी एक और डेफिनेशन भी है, इट इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड। क्या मतलब हुआ इसका? इसका ये मतलब हुआ ये वो टेम्परेचर होगा जिसपे सॉलिड जो है वो लिक्विड स्टेट में भी जा रहा होगा और लिक्विड जो है वो वापस सॉलिड स्टेट में भी जा रहा होगा। अब जैसे एक क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ लिया जाता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ये बताइए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर जो है वो आपको किस स्टेट में मिलेगा? क्वेश्चन पूछा जाता है सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, गैसियस स्टेट में, या फिर बोथ, फोर्थ ऑप्शन या बोथ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा इट एग्जिस्ट इन बोथ द स्टेट, दैट इज सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट। व्हाई? बिकॉज इट इज कंसीडर्ड एज द फ्रीजिंग पॉइंट और यू कैन से दैट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। मेल्टिंग जब स्टार्ट होती है तो उस टाइम पर दोनों स्टेट एग्जिस्ट करती है, सॉलिड एज वेल एज लिक्विड। तो आप ये पॉइंट नोट कर लेना, एट मेल्टिंग पॉइंट बोथ स्टेट एग्जिस्ट, दैट इज सॉलिड एज वेल एज लिक्विड। ठीक है, तो आपका जो भी मैटर है, जो भी सॉलिड है, वो मेल्टिंग पॉइंट पे दोनों स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। इसके बाद में हम आ जाते हैं लिक्विड से अगर हम सॉलिड बना रहे हैं तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। और फ्रीजिंग का मतलब होता है लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में किसी चीज को कन्वर्ट करना। तो यहां पर टेम्परेचर जो आएगा दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या हो जाती है? इट इज द टेम्परेचर at which liquid starts changing into solid। वो टेम्परेचर है जहां पर लिक्विड जो है वो सॉलिड में चेंज होना शुरू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। इसी तरीके से इसकी दूसरी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, द टेम्परेचर एट विच liquid is in equilibrium with solid। तो ये होगी डेफिनेशन फ्रीजिंग पॉइंट की। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन जो है वो पूछ ले कि किसी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट सेम होता है या डिफरेंट होता है, तो जनरली ज्यादातर चीजें जो आप देखेंगे उनके अंदर मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वही फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो हम यहां पर ये लिख सकते हैं कि जनरली द मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंसेस आर फाउंड टू बी सेम। इसके बाद हम आते हैं, सॉलिड से लिक्विड का कन्वर्जन हो चुका है,
अब हम आ जाते हैं लिक्विड से गैस के कन्वर्जन पे। जब हम लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करते हैं किसी सब्सटेंस को, तो दो वर्ड आपको जो है वो दिखाई देंगे। एक वर्ड होता है इवेपोरेशन और एक वर्ड होता है वेपोराइजेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू वर्ड्स? इवेपोरेशन का मतलब भी होता है लिक्विड से गैसियस स्टेट में किसी चीज को कन्वर्ट करना, एंड वेपोराइजेशन का मतलब भी होता है किसी चीज को लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना। तो डिफरेंस यहां आता है, इवेपोरेशन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जब भी कोई लिक्विड अपने आप गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, देन वी यूज दिस वर्ड इवेपोरेशन। सो व्हेन एनी लिक्विड स्पॉन्टेनियसली का मतलब अपने आप, spontaneously changes into gas, it is called evaporation। और जब किसी लिक्विड को गैस में चेंज करवाया जाए उसको हीट करके, when a liquid is converted into gas by boiling, then it is called vaporization। आप किसी लिक्विड को बॉईल करा के और उसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हो, then it is called vaporization। तो हम घर पे जब पानी को किसी बर्तन में हीट कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर वेपोराइजेशन हो रहा होता है। वेपोराइजेशन इज टेकिंग प्लेस इन द कंटेनर एट दैट टाइम। लेकिन आपने पढ़ा होगा वाटर बॉडीज जैसे कि सी, रिवर, लेक्स, इन सब से पानी जो है वो क्या होता है, इवेपोरेट होता है। तो क्यों? क्योंकि सी या ओशियंस या लेक, रिवर्स को इनको कोई गर्म नहीं कर रहा नीचे से कि जिसकी वजह से ये पानी इवेपोरेट हो रहा हो, बल्कि एटमॉस्फेयर में, सराउंडिंग में जो हीट अवेलेबल है उसी हीट को एब्जॉर्ब करके अपने आप जो है वो वाटर इवेपोरेट होता रहता है और क्लाउड्स की फॉर्मेशन करता रहता है जिससे रेनफॉल होती है। तो ये प्रोसेस अपने आप हो रहा है, इस वजह से इसको बोला जाता है इवेपोरेशन। आपको हमेशा ज्योग्राफी में वर्ड देखने को मिलेगा इवेपोरेशन ऑफ वाटर, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर मोस्टली हम क्या करते हैं, प्रोसेस करवाते हैं, तो यहां पर मोस्टली वर्ड मिलेगा वेपोराइजेशन। तो ये था डिफरेंस। अब देखिए लिक्विड से गैसियस स्टेट में हमें कन्वर्ट करना है, हम करवा रहे हैं इसलिए मैंने इसको लिखा वेपोराइजेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। तो ऐसा करवाने के लिए हमें हीट करना पड़ेगा, मतलब एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो जिस टेम्परेचर पे लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। सो व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट क्या बोला जाएगा, किसको बोलेंगे हम? द टेम्परेचर at which liquid changes into gas is called its boiling point। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है, the temperature at which liquid is in equilibrium with gas, then it is said to be boiling point of that liquid। तो एग्जांपल, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहां पर कोई भी लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। अब एक क्वेश्चन पूछते हैं, हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हमने वाटर को ले रखा है और हम इसको हीट कर रहे हैं, और ये वाटर जो है ये बॉईल होना शुरू हो गया। हमने इस कंटेनर में एक थर्मामीटर लगाया हुआ है। ये थर्मामीटर जो है वो हमें रीडिंग्स बताता है कि कितना टेम्परेचर हो गया वाटर का किस टाइम पे। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जब इस वाटर का टेम्परेचर इसके बॉइलिंग पॉइंट के बराबर पहुंच जाएगा, इस वाटर का टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन अभी भी तुम इसको हीट किए जा रहे हो, यू आर कंटिन्यूअसली हीटिंग इट, इंस्टेड ऑफ इवन द टेम्परेचर हैज रीच्ड द बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट आने के बाद इस पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? आपकी हीटिंग कंटिन्यूअस है अभी भी,
किसी बर्तन में पानी को गर्म कर रहे थे, पानी ने उबलना शुरू कर दिया, हमने उस बर्तन के अंदर थर्मामीटर लगा रखा है, हम उसको अभी भी गर्म किए जा रहे हैं, वाटर बॉईल हो रहा है और हम उसको कंटिन्यूअसली गर्म किए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि थर्मामीटर तुम्हें टेम्परेचर 100 से हायर दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। तो आंसर आता है इसका, द टेम्परेचर डू नॉट राइजेस, इट रिमेन्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड अंटिल दिस वाटर कंटिन्यूअसली इवेपोरेट। पानी जब तक इवेपोरेट नहीं हो जाता तब तक जो है इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाने वाला टेम्परेचर, क्योंकि इस टेम्परेचर पे जाते ही पानी क्या हो जाता है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन जो था उसका आंसर जो है वो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। व्हाई द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर do not rise above 100 degree centigrade even on continuous heating। तो इसका आंसर आएगा because as the temperature of water changes rises up to 100 degree centigrade, the water changes into gas. As a result, as the temperature of water reaches 100 degree centigrade, water molecules absorb the energy and pass into gaseous state. Therefore, there is no further rise in temperature। तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखो बच्चों, ये हो गया लिक्विड से गैसियस स्टेट में किसी चीज को कन्वर्ट करना। अब हम लिक्विड से गैसियस स्टेट में तो हमने देख लिया, गैस से लिक्विड स्टेट में जब आते हैं तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन जब होती है तो यहां पर जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पे कोई भी गैस लिक्विड स्टेट में जाना शुरू कर देती है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर की हम बात करें तो इट इज द टेम्परेचर at which the gas changes into liquid at critical pressure। तो वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी गैस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है क्रिटिकल प्रेशर के ऊपर, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। या हम इसको ये भी कह सकते हैं ये वो कम से कम टेम्परेचर है जो रिक्वायर्ड होता है किसी भी गैस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये हो गए टेम्परेचर और ये हो गए प्रोसेस रिलेटेड टू द चेंज इन द स्टेट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब देखो हम फोर्थ स्टेट को भी डिस्कस कर लेते हैं। सॉलिड चेंज हो जाता है लिक्विड में, ये हम पढ़ चुके हैं हीट करने पर। लिक्विड चेंज हो जाता है गैस में हीट करने पर। और अगली स्टेट है प्लाज्मा। ये स्टेट जो है वो गैस से रिलेटेड है। जब आप किसी गैस को इतनी ज्यादा एनर्जी सप्लाई कर दो कि उसके इलेक्ट्रॉन्स एटम में से निकल जाए तो ये प्लाज्मा में चली जाती है। तो प्लाज्मा को हम बेसिकली अगर बोले दिस इज चार्ज्ड गैस। एग्जांपल ले देता हूं, हीलियम गैस है मेरे पास। हीलियम एक नोबल गैस होती है और इसका एक ही एटम एग्जिस्ट करता है। इसको हम इतना ज्यादा गर्म कर देते हैं कि इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल जाता है। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम बच गया, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा।
तो प्लाज्मा गैसीय स्टेट ही होती है, लेकिन ये गैस चार्ज होती है। तो यहां पर डेफिनेशन लिख देते हैं हम प्लाज्मा की, इट इज कॉल्ड चार्ज गैस। और हमें पता कैसे चला कि प्लाज्मा एक चार्ज गैस होती है? तो जब आप हाई टेम्परेचर पे किसी गैस को हीट करते हो या फिर पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ गैस, तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिमूव हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम इट्स एटम्स। तो ये दो तरीके हैं जिससे हम प्लाज्मा जो है वो बना सकते हैं। और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जब इजेक्ट हो जाता है तो हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बच जाता है और इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा। तो आपने एग्जाम्पल देखा होगा, आजकल आता है प्लाज्मा टीवी। तो प्लाज्मा टीवी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके अंदर पिक्चर ट्यूब जो है उसके अंदर एक चार्ज गैस को फिल किया गया है। प्लाज्मा टीवी जो है उसमें चार्ज गैस का यूज किया जाता है डिस्प्ले को बनाने के लिए या फिर पिक्चर को दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये थी फोर्थ स्टेट, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। सन जो है, सन का सरफेस टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और हमने पढ़ा था कि सन के अंदर हाइड्रोजन गैस कंबाइन करके क्या बनाती है, हीलियम। तो सन के अंदर हीलियम जो प्रेजेंट है वो एक प्लाज्मा स्टेट में होती है, क्योंकि उतने हाई टेम्परेचर के ऊपर हीलियम का एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है। तो सन एक एग्जांपल हो गया जिसमें गैस प्रेजेंट है इन द स्टेट ऑफ प्लाज्मा। अब हम आ जाते हैं हमारी फिफ्थ स्टेट। फिफ्थ स्टेट जो है इसको बोला जाता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। कंप्लीटली एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, इसको थोड़ा सा इमेजिन करना भी दिक्कत होता है और इसको जो है वो समझाने में भी प्रॉब्लम आती है। आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन जो है वो मैं बता रहा हूं, द स्टेट ऑफ मैटर विच इज फॉर्म्ड, मैटर की वो स्टेट जो फॉर्म होती है बाय कूलिंग गैस ऑफ वेरी लो डेंसिटी एट 0 केल्विन टेम्परेचर, which is formed by cooling of gas having very low density at 0 Kelvin temperature। तो यहां पर वेरी लो डेंसिटी का मतलब है 1/1 lakh टाइम्स डेंसिटी ऑफ एयर। हमारे हवा की जो डेंसिटी है, इस डेंसिटी का इतना पार्ट कर दो, इतनी कम डेंसिटी होनी चाहिए उस गैस की, और इस गैस को जब हम 0 केल्विन टेम्परेचर तक कूल कर दें तब उस गैस की जो स्टेट होगी दैट इज कॉल्ड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो हमारे पास एक गैस होनी चाहिए, इस गैस के अंदर डेंसिटी जो है वो कितनी होनी चाहिए, 1/1 lakh टाइम्स डेंसिटी ऑफ एयर, और हमें इस गैस को ठंडा करना है। कितना ठंडा करना है कि इसका टेम्परेचर 0 केल्विन पहुंच जाए, तब इस गैस की जो भी स्टेट होगी यहां पर दैट इज कॉल्ड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये डेफिनेशन है इसकी। तो ये हो गए हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन जो है वो आज हमें डिस्कस करना था इस लेक्चर के अंदर। तो ये कंप्लीट हो जाता है बच्चों पार्ट। अब आप अपनी 9th की बुक्स वगैरह जो है वो उठा के और इन चीजों को रिवाइज कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। दैट्स ऑल।